Good morning, students. This is lecture number 5 and we are going to continue with our parallelogram law of vectors. In the previous class, we studied that if there are two vectors, say A and B, inclined with each other by an angle of theta, I told you that they will give you size of A, they will give you size of B, and they will give you theta. And you are expected to find out the magnitude of this vector and the direction of this vector. So, magnitude of this vector means you will be interested in knowing what is size of vector R. Am I right? That means only R. Am I right? Yes. And next you are interested in finding out the direction. That what is alpha. Direction is always given by angle. Direction is always given by angle. And the direction word also stands for orientation of the vector. It is also called orientation. That means out of these three, A, theta and B, they will give you A. I am deliberately taking the value which I had given you last time. Was it taken as 4? Right? Size of B, was it taken as 3? Right? And theta, was it taken as 60 degree? You can take n number of values of theta. You can take 30 degree, you can take 45 degree, you can take 60 degree, you can take 90 degree, you can take 180 degree. I took 3 standard values in the previous class, if you remember. Theta was taken as 0, theta was taken as 90, and theta was taken as 180. What was my answer of R, by the way? Was my answer of R root of A square plus B square plus 2AB cos of theta? And you know that A, B and theta were given. You know that A, B and theta were given. So if I just stick to those 3 standard answers of mine, what were those 3 standard answers? If I take theta to be 0, what do you mean by that? You are taking parallel vectors. If I take theta to be 90, what do you mean by that? Angle between them is 90, perpendicular vectors. And theta is 180, matlab anti-parallel. So if theta is 0, what is my answer? If theta is 180, what is my answer? If theta is 90, what is my answer? When theta is 0, my answer is A plus B. Yes or no? My answer is A plus B. And this is the highest answer. आपका आंसर इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है. Yes or no? Because cos of 0 is 1. Right? When you take this answer, your answer is A minus B. लेकिन यहाँ पे मैं mod लिख रहा हूँ. Because I have taken A as 4 and B as 3. A student may take A as 3 and B as 4 because changing the name is allowed. Changing the vector is not allowed, but you can give different names. Right? What will be R here, beta? Will it be root of A square plus B square? So this answer is my lowest answer. So in between, if I select my angles as 60 degrees, suppose, if I select the angle as 120 degrees, suppose, तो बेटा मेरा maximum answer क्या आया था? Maximum अगर मैं ये values लूँ तो मेरा ये आंसर था 7, मेरा ये आंसर था 5, मेरा ये आंसर था 1, बराबर? मतलब मेरा ये आंसर 7 और 5 के बीच में आएगा और मेरा ये आंसर 5 और 1 के बीच में आएगा. But for sure my answer will not exceed the range 1 to 7. That means my answer will lie between minimum and maximum. Last time बेटा हम लोगों ने यहाँ तक किया था. Now today we are learning the direction. Recall. Was the diagram further drawn this way? This was extended like this and perpendicular was dropped from here. Right? ये एंगल थीटा था तो बेटा ये एंगल भी थीटा था. ये साइड B था तो ये साइड भी B था, है ना? ये साइड A था तो ये साइड भी A था. राइट? और ये साइड R था. याद करो थीटा का सामने वाला साइड was B sin थीटा and थीटा का बाजू वाला साइड was B cos थीटा. Right? In the previous class, we found out the formula of R. In today's class, we are finding out the formula of alpha. Finding out the formula of alpha. सोच के बताओ बेटा कि this entire diagram is labeled this way. This is O, this is P, this is Q, R is reserved here. So this is S and this is T. Right? अगर आपको R ढूंढना था R, तो भी आपको बड़े ट्रायंगल की जरूरत थी. That was OTS. Now if you wish to find out alpha, still you need the bigger triangle only. Yes or no? Look at the triangle OTS.
from right angle triangle OTS. ध्यान से देखो बेटा, tan of alpha is it सामने वाला साइड अपन बाजू वाला साइड? Please tell me what is tan of alpha? B sin theta upon A plus B cos theta. Yes or no? B sin theta upon A plus B cos theta. लेकिन आपको अल्फा की जरूरत है कि tan अल्फा की? अल्फा की. अल्फा ना बेटा, आपको अल्फा ढूंढना है. What is alpha? It is the angle made by resultant with horizon. What is the meaning of alpha? It is the angle between vector R and horizon. बराबर. अब ये हॉरिजॉन्टल में इसलिए लिख रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल वेक्टर मैंने ए ही लिया है, हो सकता है मैंने बी लिया है. तो अगर मैं इसको बी बोलता हूँ तो इसको ए बोलूंगा, इसको ए बोला तो इसको बी बोलूंगा. दैट्स व्हाई इट इज सेफ टू से एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल. समझा अच्छे से? एंड दैट इज दिस. नाउ आपको क्या चाहिए, अल्फा की tan अल्फा? अल्फा मतलब आपको ये tan शिफ्ट करना चाहिए, मतलब आपको ये tan शिफ्ट करना चाहिए. नाउ दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू. Whenever the trigonometric function changes the side, it is called inverse function. Whenever the trigonometric function changes the side, it is called inverse function. So what is the meaning of inverse function, students? Inverse function is when you change the side of sine, या तो cos, या तो tan, या तो cot, या तो sec, या तो cosec. Let me make it very very simple for you, beta. What is the meaning of inverse function? Listen to this carefully. What is an inverse function? What is an inverse function? Please tell me what is sine of 30 degree? 1 by 2. Very good. What is cos of 60? 1 by 2. What is cos of 30? 3 by 2. What is tan of 45? 1 by 2. बराबर. That means you know these angles, right? Inverse function का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो. If sine of 30 degree is half, जो आपने अभी बोला था. If cos of 30 degree is root 3 by 2, जो आपने अभी बोला था. If tan of 45 is equal to 1, then ये साइन फंक्शन बेटा शिफ्ट हुआ, राइट, और वो साइड पे गया. 30 डिग्री इज प्रोनाउंस्ड एज साइन रेज टू -1 ऑफ हाफ. इसको रीड कैसे करते, ध्यान से सुनो. इट इज रेड एज साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज 30 डिग्री. हाउ इज इट रेड? साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज 30 डिग्री. Sin inverse of 30 degree. Sin of 30 degree is half. That means sin inverse of half is 30 degree. Now very important. This is something like आपने सेंटेंस उल्टा बोलना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. What's your name? Tejas. Your father's name? Monish. Okay. So I'm saying Tejas is son of Mr. Monish. In other words, can I say Mr. Monish is father of Tejas? मीनिंग चेंज नहीं हुआ बेटा, मैंने खाली उल्टा बोला. इसका मतलब इनवर्स ऑफ सम वैल्यू इज एंगल. इनवर्स ऑफ सम वैल्यू इज एंगल. इफ साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ, मैंने ऐसा पूछा था कि बेटा व्हाट इज साइन ऑफ 30. मैंने क्या पूछा था, व्हाट इज साइन ऑफ 30, आपने बोला हाफ. मतलब मैंने एंगल दिया, आपने आंसर दिया. अभी मैं क्वेश्चन उल्टा कर रहा हूं कि व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ हाफ, मींस इट इज 30 डिग्री. व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ √3 by 2, 30 डिग्री अगेन. What is tan inverse of 1? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, then 30 degree is cos inverse of √3 by 2, right? Then can I say 45 degree? Can I say then 45 degree is tan inverse of 1? Yes or no? Now very important note. Very important note. ध्यान से सुनो बेटा. Sin inverse does not mean 1 upon sin. मतलब इसको कोसेक नहीं समझने का. ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम लोग जब a raised to -1 लिखते हैं तो हम लोग इसको 1 upon a raised to +1 लिखते हैं. या तो अगर हम लोग a raised to +1 लिखते हैं तो इसको 1 upon a raised to -1 लिखते हैं. अगर हम लोग 10 raised to -3 लिखते हैं तो इज इट 1 upon 10 raised to +3? ये नंबर्स के साथ और वैल्यूज के साथ होता है, फंक्शन के साथ नहीं होता है.
So please do not misunderstand sin inverse as 1 upon sin. इसका मतलब ये हुआ कि please do not misunderstand sin inverse as cosec. Sin inverse cosec नहीं होता है. Yes or no? Yes. 1 upon sin is cosec, but sin inverse itself is not 1 upon sin. ये खाली उल्टा बोलने का स्टाइल है. If sin of 30 is half, how will you read this? Therefore 30 degrees sin inverse of half. If cos of 45 is 1 by root 2, how will you read this? Cos 45 degree is cos inverse of. एकदम क्लियर बेटा, एकदम क्लियर. मतलब आपने क्या करना है इधर, tan को शिफ्ट करना है. तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? Therefore alpha is tan inverse of. Is it b sin theta upon a plus b cos theta? समझा बेटा? Come on, what is tan alpha? Tan inverse of b sin theta upon a plus b cos theta. अब इसको याद रखने का एक स्टाइल है, and that style is tan inverse of दूसरे का sin थीटा अपॉन पहला प्लस दूसरे का cos थीटा. आई रिपीट, हम लोगों ने वेक्टर ए को पहला वेक्टर लिया है. कैसे मालूम? क्योंकि हमने उसको हॉरिजॉन्टल बनाया. वेक्टर ए इज अलोंग हॉरिजॉन्टल ना, वेक्टर ए इज अलोंग हॉरिजॉन्टल. तो इसको आप वेक्टर नंबर 1 बोल दो फर्स्ट, राइट? दिस इज वेक्टर नंबर 2, बराबर. तो b sin थीटा इज साइन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर नंबर 2. व्हाट इज इट? What is b cos theta? Cos component of vector number 2. या तो better way of saying this is b sin theta is sin component of b cos theta is cos component of b. So how will you read this? Alpha is tan inverse of b sin theta upon a plus b cos theta. It is tan inverse of दूसरे का sin theta upon पहला plus दूसरे का cos theta, where पहला is chosen along horizontal. Is that very clear? आपने जो horizontal के साथ लिया ना उसका बोलेगा. अभी सपोज कोई स्टूडेंट ऐसे करता है कि सर मैंने इसको B नाम दिया है और इसको A नाम दिया है, तो आप ये फॉर्मूला कैसे रीड करोगे? tan inverse of A sin theta upon B plus A cos theta. समझा? अभी ये जो मैंने नंबर्स दिए थे उसके हिसाब से ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने R ढूंढा था, अल्फा ढूंढना बाकी था. तो इफ आई चूज दिस इटसेल्फ एज द प्रॉब्लम, देन कैन आई से मेरा अल्फा का आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ दूसरे का साइन थीटा अपॉन पहला प्लस दूसरे का कॉस थीटा. यस और नो? इज इट दूसरे का साइन थीटा अपॉन पहला प्लस दूसरे का कॉस थीटा? प्लीज टेल मी what is sin 60? Very good. Upon 4 plus what is cos 60? Right? तो बेटा ये आगे सॉल्व कैसे होगा? This is tan inverse of 3 root 3 upon 2 upon, ध्यान से सुनो, this is 4 plus 3 by 2. So this is 8 plus 3, 11 by 2. Yes or no? 2 cancel, and therefore finally my answer will be tan inverse of 3 root 3 upon 11. And they will not tell you to solve this further. Because ये आड़ा टेढ़ा एंगल है. This is neither tan inverse of 1 nor tan inverse of 1 by root 3 nor tan inverse of root 3 by 1. So when they are आड़ा टेढ़ा angles like this, they give the options like this. ऑप्शन कैसे देंगे? tan inverse of 3 upon 11, tan inverse of root 3 upon 11, tan inverse of 3 root 3 upon 11, and tan inverse of 11 upon 3 root 3. So you have to just identify the correct option. याद रखने का स्टाइल बेटा वापस एक बार बोलो. What is alpha? Direction of resultant with whom? Perfect. What is alpha? Direction of resultant. अच्छा, ऐसा जरूरी है कि अल्फा आपको यही लेना चाहिए? नो. मान लो अल्फा सॉल्व करने के बाद मेरा 20 डिग्री आया, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि इफ अल्फा वाज चोजन एज दिस, तो मेरा वो आंसर भी 40 डिग्री आएगा, बिकॉज ये एंगल 60 डिग्री है. ये पूरा एंगल कितना है? सपोज ग्रीन वाला सॉल्व करने के बाद 20 आया, तो जो बाकी बचा हुआ एंगल क्या है?
means it is allowed, but just for our comfort level we take this angle with horizontal. चलो बेटा फाइनल टाइप, व्हाट इज अल्फा? tan इनवर्स ऑफ दूसरे का sin थीटा अपॉन पहला प्लस दूसरे का cos थीटा. So now suppose I am changing my question. Listen to this carefully. There are vectors p and q, and p is chosen with horizontal. Then what is alpha? Tan inverse of q sin theta. p पहला है ना बेटा, मैंने p और q बोला और p मैंने horizontal के साथ दिया. What is it? Tan inverse of समझा बेटा? तो लास्ट टाइम अपना जो अल्फा बाकी था वो इसलिए बाकी था because first you have to understand inverse function. First you have to understand inverse function means you are changing the side of the trigonometry side. So sin becomes sin inverse, cos becomes cos inverse, tan becomes tan inverse. Inverse does not mean 1 upon. Inverse means just change of side. Is that very clear? आपका handwritten notes, handwritten पेज नंबर 6 शायद. बुक किधर है? बुक किधर है? तुम लोग मत आओ यार क्लास में, मुझे रिकॉर्डिंग में ये सब नहीं बोलना होता है, नहीं जमता है, मत आओ प्लीज. भूल गया मतलब क्या आंसर है? गेट अप, यू आर टॉकिंग टू योर सर. भूल गया मतलब क्या आंसर है? इतना सारा होमवर्क मैं करवाऊंगा, सब प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, किधर करोगे विदाउट बुक? नॉनसेंस. Sit down. Tell your father to call me up in the evening. What's your name? Full name? Tell him to call me up. I would like to talk to you. Page number 7. Left side. Second last article. Page number 7. Left side. Second last article. Check. What is the meaning of inverse function? Revise. What is the meaning of inverse function? उधर मैंने खोपड़ी करते एकदम लिखा है उधर कि प्लीज रिमेंबर साइन इनवर्स डज नॉट मीन 1 upon secant. साइन इनवर्स फंक्शन समझा? साइन इनवर्स इन जनरल, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, एवरीथिंग. बराबर. अब पेज नंबर 6 पे जाओ. जो बॉटम का 3 लाइन बाकी था, बराबर, मतलब पहले आपको मालूम होना चाहिए इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसके बाद में आप डायरेक्शन समझ सकते हो. तो लास्ट टाइम मैंने डायरेक्शन क्यों होल्ड पे रखा था समझा? पेज नंबर 6 राइट साइड लास्ट 3 लाइंस. नाउ दिस आर्टिकल इज कंप्लीटेड. समझा? तो बेटा पेज नंबर 6 अभी पूरा हो गया, उधर कुछ भी पेंडिंग नहीं है. पेज नंबर 7 भी अभी कंप्लीट हो गया. राइट. पेज नंबर 7 का राइट साइड आप देखोगे ना तो उसमें अल्फा वाला पार्ट बाकी था. नाउ टुडे वी हैव कवर्ड दैट अल्फा वाला पार्ट आल्सो. राइट. पेज नंबर 7 राइट साइड मिडल देखो बेटा, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? वो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, अभी किया. तो पेज नंबर 7 पूरा टिक करो. Yesterday I had sent one message on parents group. That Sunday on, I'm sure your parents must have spoken to you about this. Not this Sunday. उसके बाद वाले संडे से एग्जाम शुरू हो रहा है. राइट. तो नेक्स्ट वीक में अगेन मैं आपको रिमाइंडर दूंगा कि वेयर यू कैन गिव दिस एग्जाम इफ द बोरीवली सेंटर इज क्लोजर टू यू. यू सी यू हैव टेकन क्लासेस इन विलेपार्ले, but suppose you are staying nearer to Malad or Kandivali or Borivali, you can give the exam there, no problem. Is that clear? Sunday exams में it is flexible, you can give the exams there. What is the address of the examination center? I will share this address with you. Okay? एक बार जाके जरा देख के आने का. कांदीवली रेलवे स्टेशन से it is walking 5 minutes. यहाँ का सेंटर is विलेपार्ले स्टेशन से it is walking 5 to 7 minutes. कितने मार्क्स होगा? In the beginning, suppose enough amount of portion is not covered, then it will be of 30 marks or 35 marks. But as far as physics is concerned, we have done enough number of lectures. अभी बेटा next week में तो 3 lectures मिलेंगे ना, मेरे 2 और सत्यन सर का 1. So the portion will be my chapter plus सत्यन सर chapter. DCT का portion बेटा teacher wise होता है. जब मैं मेरा DCT लेता हूँ तो सिर्फ मेरा portion होता है, because it is my lecture and I am taking that exam during my lecture. सत्यन सर's DCT मतलब सत्यन सर का portion. But Sunday exam is physics exam, no? तो physics में जितना सिखाया वो सब. Okay?
Negative marking in the beginning, beta, we will give you the choice. Right? All your departments will talk to you. Chemistry department and maths department also will talk to you whether you want to attempt CET paper or JEE paper. That means we are going to set 2 papers. We will set CET papers for those students who want to give CET exam. 50 questions, no negative mark. Those students who want to attempt JEE paper, that paper will be 25 MCQs and there will be negative mark. It is as per the standard style. So we will give you that choice. Still we have 10 days left. So maybe on Tuesday I will give you this choice. Of course beta, of course. Time duration दोनों के लिए बना हुआ है. दोनों दे सकते हैं. Sorry? दोनों नहीं दे सकते. क्योंकि एक पेपर आपको बेटा सेंटर पे तो एक ही देना पड़ेगा, राइट? दोनों नहीं दे सकते. You have to choose. और बाद में चाहिए तो आप अपने फ्रेंड से उसका कॉपी लेके सॉल्व कर सकते हो. If you suppose he is giving JEE, he is giving CET. Now if they interchange the paper घर पे जाके कि भाई तू तेरा xerox करवा मैं मेरा xerox करवा तो स्वाइप करते घर पे ट्राई करते एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. That you can. That's all. But सेंटर पे कोई भी एक ही देना पड़ेगा ना बेटा. सर तो फिर एक जो फर्स्ट टाइम चूज किया वही फिर हमेशा देना पड़ेगा. Not necessary. उसका भी रीजन बोल देता हूँ बेटा. फर्स्ट 6 संडेज का जो एग्जाम होगा उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स टीचर्स will sit with your combined score because in the span of 6 weeks all your papers will be done 4 times because it is this way physics chemistry maths physics maths मतलब बेटा 3 वीक में 2 बार पेपर हुआ दोनों तीनों सब्जेक्ट का नेक्स्ट 3 वीक में और 2 बार पेपर होगा so we have a data of 4 exams of each subject then we will propose it to your parents कि your child is capable to do JEE means continue but if we feel that your scores are tumbling down very badly that will unnecessarily push you in negative complex. So we will advise your parents कि better that your child does CET. Still if your parents insist कि नहीं I want my child to do JEE, most welcome, no problem. As a teacher it is my duty to tell your parents कि उसको stress आ जाएगा ज़्यादा तो आप उसको CET करें. That choice we will give you, don't worry. ना? I will give you brief explanation of this on Tuesday because ये Sunday को exam नहीं है ना. ओके चलो नेक्स्ट वन पेज नंबर 7 अपना हो गया. पेज नंबर 7 कंप्लीटेड. इनवर्स फंक्शन क्या होता है कंप्लीटेड. डायरेक्शन क्या होता है कंप्लीटेड. आर वी नाउ ऑन असाइनमेंट नंबर 1. जब मैं सॉल्व अच्छा एक बात ध्यान से सुनो बेटा. असाइनमेंट नंबर 1 विल बी आफ्टर योर सिनॉप्सिस इज ओवर. या इट इज पेज नंबर 43. पेज नंबर 43 आफ्टर हैंड रिटन नोट्स आई थिंक योर असाइनमेंट्स बिगिन राइट. पेज नंबर 17 पे आपका हैंड रिटन नोट्स खत्म हो रहा है राइट. पेज नंबर 43 ना. When I am writing the solution on the board, you just understand how to write the solution. You are not going to do anything on the left side. Left side पे सिर्फ बेटा 2 चीजें आनी चाहिए. स्टार एंड खोपड़ी. स्टार मतलब एब्सोल्यूट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर. हम लोग उसको FAQ भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. खोपड़ी मतलब टफ है. मतलब जब आप प्रिपेयर करते हो टाइम पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने का क्वेश्चन. इट इज अ ट्रिक क्वेश्चन राइट. एवरीथिंग यू हैव टू राइट ऑन राइट साइड ओनली. अच्छा व्हेन यू आर डूइंग द होमवर्क प्लीज डू इट विथ पेंसिल because you don't know whether you are right or wrong. But when I am writing something on the board and if you are copying it, you can use the ink because you are copying my solution. When I am teaching something, please do not start it. Right? After every question, I will search 1 or 2 questions for you which are similar and you can solve on your own. Okay? After every question, please do not start it. First, you try to understand. आपको लेफ्ट साइड पे आंसर भी टिक नहीं करना है. सपोज आपको लगा कि फर्स्ट का आंसर सी आया तो आपको राइट साइड पे करना है. बिकॉज at the time of exam then what you can do is you can hide this page and you can treat them as fresh questions. अभी suppose आपने first में आंसर मार्क कर लिया था 3. Obviously you see कि first का आंसर is C. That means your brain stops thinking about A, B and D because now you are biased. You know that answer is C. So now you are not thrilled about the answer is what. Now you want to know why the answer is C. That means it is something like you are going for some suspense movie and you know the suspense right from the beginning. अभी सपोज मैं 12 से 3 का शो देखने जाता हूँ और वो मूवी में मर्डरर कौन है मुझे पता है क्योंकि मैंने पूरी मूवी देख ली है. अभी मैं थिएटर से बाहर आऊँगा और जो 3 से 6 के लिए जो शो के लिए लोग खड़े हैं मैं सब दूर से चिल्ला के भाग जाऊँगा. मर्डरर इन दिस मूवी इज करीना कपूर और मैं गाड़ी में बैठ के भाग जाऊँगा. आपका तो पूरा मूड गया ना बिकॉज ऑल द टाइम नाउ यू विल नो क्या करीना कपूर इज द किलर. So you lose the charm of watching the movie, right? First question.
always have a habit of arranging the vectors in I, J, K form. I, J, K. ध्यान से देखो बेटा, वेक्टर B जंबल करके दिया है, वेक्टर C भी जंबल करके दिया है, तो पहले आप उसको अरेंज करो. वेक्टर A is 4i plus 3j minus 2k. वेक्टर A is 4i plus 2j minus 3k. Vector B is I plus 3k plus j. I plus 3k plus j. So can I write this as I plus j plus 3k arrangement के बाद. And vector C is 3k plus 4i plus 5j. So can I say 4i plus 5j plus 3k. समझा बेटा? क्या पूछा है? Resultant. What is the meaning of resultant? Add them. What is the meaning of resultant? When you add two or more vectors and if you get single answer, then that is called resultant. Many to one is called resultant. Many to one is called resultant or combination. So what is vector R? Is it vector A plus vector B plus vector C? ये मैंने अरेंज क्यों करवाया मालूम है? I के नीचे I आना चाहिए, J के नीचे J आना चाहिए, K के नीचे K आना चाहिए. So what is 4i plus I plus 4i? Is it 9i plus 2j plus 1j plus 5j? Is it 8j plus minus 3k plus 3k is gone plus 3k? तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर हुआ. आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो. Sometimes they ask magnitude of this. मतलब आपको यहाँ पे स्टॉप नहीं करना. Will it be root of 9 square plus 8 square plus 3 square? अच्छा, sometimes they ask you where does this vector lie? 1 dimension की, 2 dimension की, 3 dimension. मान लो बेटा, मान लो मेरा आंसर सॉल्व करके आता है 0i plus 2j plus 5k. Myself plane, मेरा x coordinate 0i. What if I get 9i plus 0j plus 3k? What if I get 8j plus 3k? अच्छा, what if I get only 9i? What if I get only 3k? Example देखो बेटा, example. Are you on question number 1-5 please? 1-5, 15. Are you on question number 15? Have they given you 3 forces? आपको बोला है कि resultant force ढूंढो, या तो ऐसा बोला है कि the particle will move along what? Apply common sense. When the particle is under the influence of 3 forces, that means it is under the influence of the resultant of these 3 forces. मान लो आपके आंसर में, मान लो, क्योंकि मुझे चारों के चारों आंसर में से 3 आंसर्स प्लेन में दिख रहा है और एक आंसर एक्स एक्सिस पे दिख रहा है. मान लो मेरा आंसर ऐसा पूछा है 0i plus 2j plus 5k y z प्लेन. मेरा आंसर आया 2i plus 0j plus 5k x z प्लेन. लॉजिक समझा बेटा? वेट प्लीज, स्टे देयर. ऑल्सो चेक क्वेश्चन नंबर 20. उसमें भी बेटा 3 फोर्सेस दिए, उसमें भी 3 फोर्सेस दिए. तो आप तीनों को ऐड करोगे पहले और आपके एंड रिजल्ट से आप डिसाइड करोगे कि ये पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में जाएगा. यस और नो? आप एक काम करो, फर्स्ट क्वेश्चन के बिल्कुल बाजू में लिख के रखो, लेफ्ट साइड में लिख सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन के बिल्कुल बाजू में लिखो सॉल्व 15 and 20. फर्स्ट क्वेश्चन आप कॉपी करोगे, फिर सीधा 15 पे जाओगे, सॉल्व करोगे, मुझे आंसर बताओगे, वो आंसर मैं कंफर्म करूंगा कि राइट है कि रॉन्ग. फिर आप 20 सॉल्व करोगे, मुझे आंसर बताओगे, हम लोग कंफर्म करेंगे आंसर राइट है कि रॉन्ग है. फर्स्ट का आंसर क्या आया बाय द वे? दिल्ली. चलो बेटा फर्स्ट कॉपी करो. अच्छा 15 और 20 पे जाके लिखो, 15 और 20 पे जाके लिखो. Same as first. Same as first. This is the smart way of studying. Exam के time पे you will not have enough time to study, go through everything. So what you can do is now you know these 3 questions are same. 3 में से कोई भी एक करो, बाकी का 2 आना चाहिए. मैंने एक समझा ना, ये मैंने पहले से करके रखे. Good. Start with practice paper 1. कितने करके रखे सबके सब? Assignment 1 में कितने करके रखे? पहले तो पेपर साइड है ना वो किया. गुड, वेरी गुड. बुक लाया नहीं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? अभी मैं बोलता हूँ तू प्रैक्टिस पेपर 1 सॉल्व कर. मैं अब तक सारे होमवर्क सब कुछ आज एक ही दिन किया इसको. ठीक, नेक्स्ट टाइम टेक केयर.
तब तक टाइम यूज करो, प्रैक्टिस पेपर 1 सॉल्व करना शुरू। Because this is your homework for next lecture. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा, आप लोग 15 और 20 सॉल्व करना शुरू करो। मुझे आंसर जानना है 15 और 20 का आंसर क्या आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करने के बाद you solve 15 and 20. I would like to know the answers. बेटा 15 का आंसर क्या है? मुझे वेक्टर बताओ, वेक्टर क्या है? 2j minus 6k. Every student please confirm with me. बेटा आपका 15 का आंसर 2j minus 6k आया क्या? इसका मतलब आपका आंसर YZ प्लेन में हुआ। वेरी गुड। प्लीज टेल मी 20 का आंसर क्या है? खाली 2k, खाली 2k। वेरी गुड। सो इज इट अलोंग z एक्सिस? समझा बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का? शॉर्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, 15 and 20 डन। आर वी ऑन क्वेश्चन नंबर 2? Are we on question number 2? Okay, please do not start with me. Vector is given by 3i plus 2j minus 4k. Then its magnitude is. Vector is given by 3i plus 2j minus 4k. Then what is the magnitude of this vector? Can I say magnitude of this vector is square root of sum of squares of components? So is it 3 square plus 2 square plus minus 4 square? So is it root of 9 plus 4 plus 16? Is it root of 29? चेक प्लीज, उन्होंने आंसर रूट में ही छोड़ दिया है। अच्छा बाई चांस आगे सॉल्व करते तो शुड इट बी 4 पॉइंट समथिंग? नो 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 5 पॉइंट समथिंग, बिकॉज दिस लाइज बिटवीन रूट 25 एंड रूट 36। तो बेटा सेकंड का आंसर क्या आया? दिल्ली। रुको 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 रुको, check question number 6 please. Check question number 6 and question number 11. Question number 6 में एक वेक्टर दिया है उन्होंने, बट उन्होंने उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ xy प्लेन में पूछा है, मतलब z नहीं लेने का। ओरली बताओ क्या आंसर? रूट ऑफ 10। अच्छा yz प्लेन में पूछा होता तो रूट ऑफ 5। चेक चेक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 itself. सेम क्वेश्चन है, खाली लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया। अच्छा सपोज xz प्लेन में पूछा होता तो रूट ऑफ 13, और ऐसे इन जनरल पूछा होता तो ये हो गया ना, फिर स्पेस इट विल बी रूट ऑफ 14। तो सेकंड क्वेश्चन में आप लिखो सॉल्व 6th and 11th। आपका बेटा 6th का आंसर आएगा रूट 10 मतलब c, और 11th का आंसर आएगा रूट 5 मतलब बॉम्बे। समझा स्मार्ट वर्क कैसे करने का? मैंने बोर्ड पे देखो 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन मेरा 6 क्वेश्चंस हो गया। समझा? चलो गुड। रेड रेड बॉल। सिक्स्थ और 11th में जाके लिखने का सेम एज 2, जो भी नंबरिंग में लिखता हूँ ना जाके लिखने का सेम एज 2।
second question, 6th question and 11th question done. Resultant मतलब sum, addition मतलब sum. Next question में clearly बोला है find out a minus b. That means it is first vector minus second vector. Vector number 1 is 2i minus 5j plus k. Vector number 1 is 2i minus 5j ki plus 5j? Minus 5j plus k. And what is vector b? एक जन बोलो i plus minus ओके स्टॉप राइटिंग. उन्होंने मुझे वेक्टर a माइनस b पूछा है, मतलब ये समेशन नहीं हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ. एंड बिकॉज इट इज a माइनस b, मतलब सेकंड वेक्टर का साइन चेंज होगा. दिस विल बिकम माइनस, दिस विल आल्सो बिकम माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस. सो व्हाट इज 2i minus i? इज इट i minus 5j minus j minus 6j k plus 3k 4k. You have to be careful बेटा, you have to be careful. This is vector a minus vector b. अच्छा बाई चांस में वेक्टर b माइनस वेक्टर a पूछता, स्टॉप राइटिंग. बाई चांस में वेक्टर b माइनस वेक्टर a पूछता तो इसका साइन चेंज कर देने का, बिकॉज वेक्टर b माइनस वेक्टर a इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर a. सो विल इट बी माइनस i प्लस j. समझा? एज पर द क्वेश्चन प्लीज टेल मी क्या आंसर आया. सॉरी बॉम्बे. यस और नो? चलो कॉपी. Question number 3 answer is Bombay. Question number 3 answer is Bombay. अभी चलो क्वेश्चन. हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 स्टॉप राइटिंग बिकॉज देयर आर टू सिमिलर क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी के दो आप सॉल्व करोगे. ओके प्लीज स्टॉप राइटिंग, प्लीज स्टॉप राइटिंग. क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनो. क्वेश्चन नंबर 4, डोंट स्टार्ट विथ मी. द फर्स्ट पॉइंट इज 2, 3, -6. लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट P. इट इज 2, 3, -6 and the second point is Q is -2, -5, 7. Right? Don't start with me please. उन्होंने क्या पूछा है? What is vector PQ? तो इसमें पहला पॉइंट कौन हुआ? P. और दूसरा पॉइंट कौन हुआ? Q. So should we write this as vector PQ is equal to final minus initial times I plus final minus initial times J plus final minus initial times K. तो इधर P minus Q लिखने का कि Q minus P? Q minus P, Q minus P, Q minus P. Because I, therefore x component, y component, z component. Now who are these? Px, py, pz, and this is qx, qy, qz. बराबर? So what will be my answer? Will it be -2 times I plus -5 -3 times J plus 7 -6 times K. तो मेरा फाइनल मोस्ट आंसर क्या है बेटा? -4I -8J plus 13K. Now see why you have to be super alert. उधर आपको 4, 8 और 13 तीनों दिखेगा, चारों ऑप्शन में आपको 4, 8 एंड 13 तीनों दिखेगा. मतलब प्लस माइनस का गेम था. लेट अस सेव लिटिल टाइम. आप लोग फोर्थ क्वेश्चन में लिखोगे सॉल्व 13 एंड 23. फोर्थ क्वेश्चन में आप लिखोगे सॉल्व 13 एंड 23. अब एकदम ध्यान से सुनो बेटा. 13 पे जाओ जरा. 13 पे उसमें आपको वेक्टर पूछा है, लेकिन 23 में देखो आपको वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है. वेट अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड पूछा होता तो मैं क्या करता? स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर. मतलब मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं करता. यस और नो? अगर वेक्टर हुआ तो उसमें IJ के आएगा.
और मैग्नीट्यूड हुआ तो उसमें IJK नहीं आएगा। 23rd का ऑप्शन देखो, उसमें IJK नहीं आएगा। एक मिनट, समझा बेटा आपको? ये क्वेश्चन के बाद आप 33rd 23rd खुद से करोगे और मुझे आंसर बताओगे। ओके, चलो स्टार्ट। फोर्थ में आप लिख के रखो सॉल्व 13 एंड 23। 13 और 23 पे जाके लिख के रखने का सेम एज फोर्थ। Can you pause the video for some time? Stop मत करना बेटा, pause. ध्यान से सुनो। Next one, stop writing, stop writing. Question number 5. अभी ये बेटा थोड़ा नया है, थोड़ा नया है। Vectors are given as parallel. Stop writing. Parallel का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। Suppose बेटा ये वेक्टर है I plus j, और ये वेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूँ 2i plus 2j का। आर दे पैरेलल? और ये वेक्टर इसका एग्जैक्ट डबल है, राइट? अब ये वेक्टर बेटा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 3i plus 3j। आर दे पैरेलल? तो पैरेलल का मतलब होता है उनके कोएफिशिएंट का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। इज 2/1 इक्वल टू 2/1 बराबर? इज 3/1 इज इक्वल टू 3/1 is 3/2 is equal to 3/2. So I am writing 4 rules. I am writing 4 rules. मुझे सोच के बोलना क्या आंसर होना चाहिए। If this is a new concept, easy concept, very very easy concept. Okay? आपको ये concept लिखना नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने नोट्स में दिया हुआ है, खाली उसमें कुछ ऐड करना है। If vector P is Pxi plus Pyj plus Pzk, and if vector Q is Qxi plus Qyj plus Qzk, implies Px upon Qx is Py upon Qi is Pz upon Qz। ये रेशियो हुआ बेटा, ये रेशियो हुआ कि नहीं? अब ये रेशियो के 4 पॉसिबिलिटीज है, ये रेशियो के 4 पॉसिबिलिटीज है। अगर ये रेशियो पॉजिटिव आया तो क्या, अगर ये रेशियो नेगेटिव आया तो क्या, अगर ये रेशियो पॉजिटिव भी आया और 1 भी आया तो क्या, और अगर ये रेशियो नेगेटिव भी आया और 1 भी आया तो क्या? चलो पहला वाला, अगर ये रेशियो पॉजिटिव आया बेटा तो दे मस्ट बी पैरेलल वेक्टर्स। अभी वही तो लिखा था मैंने, i plus j लिखा था एक में और एक में 2i plus 2j लिखा था। तो बेटा ये रेशियो क्या है? 1/2। ये रेशियो क्या है? 1/2। Is it positive? But it is not 1 also. तो रेशियो पॉजिटिव हुआ तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा? They are parallel vectors. अच्छा, सपोज ये i plus j होता, हाँ ये i plus j होता और दूसरा वाला -2i - 2j होता। Are they anti parallel? ओके, कॉमन सेंस अप्लाई करो बेटा। अभी ये i plus j है और ये भी i plus j है, बिकॉज रेशियो 1/1 हुआ, मतलब पॉजिटिव भी हुआ और 1 भी हुआ। देन आर दे इक्वल? यस और नो? कॉमन सेंस लास्ट वाला। आर दे नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर? आर दे नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर? तो बेटा पैरेलल का मतलब क्या? कोएफिशिएंट का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। कोएफिशिएंट का x के साथ x का रेशियो सपोज 3/5 आया तो y के साथ y का रेशियो भी 3/5 आना चाहिए और z के साथ z का रेशियो भी। सोचो अगर बेटा मैंने एक वेक्टर दिया 2i plus 3j plus 4k और दूसरा मैंने दिया 4i plus 6j plus 8k, what can you say about this? Because 2/4 is half, 3/6 is half, 4/8 is half. अगर एक भी साइन चेंज हो गया ना तो आप इनको पैरेलल नहीं बोल सकते। उसका रीजन है बेटा, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन क्या ये 1/2 है? तो वो पैरेलल नहीं है, तो वो पैरेलल समझा? सुपर श्योर, एकदम अच्छे से। नेक्स्ट वाला देखो, एज दे सेड दैट दे आर पैरेलल। नाउ वेट, हमेशा पैरेलल में वो रेशियो कांस्टेंट है, रेशियो पर तो नेगेटिव होगा वो रेशियो तो पैरेलल। हाँ तो एंटी पैरेलल हो गया ना बेटा। बट रेशियो सपोज -1/2। एक मिनट, ये i plus j है, राइट? अभी बेटा दूसरा वेक्टर तो -2i - 2j ऐसे ड्रॉ कर दीजिए तो ये एंटी पैरेलल हुआ ना, बराबर ना? वेट प्लीज वेट,
You don't need to copy everything because some part is already given. Are you on handwritten notes page 8? Are you on handwritten notes page 8? इसमें नहीं है, ये लास्ट पेपर है, इसलिए बुक लाना होता है हमेशा. Are you on handwritten notes page 8? Extreme left top देखो, क्या लिखा है बेटा? Two vectors are said to be parallel if the ratio of their components is constant. बाद में नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया है, देखो I plus 2j plus 3k और दूसरा वेक्टर दिया है 3i plus 6j plus 9k. मतलब दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर का 3 टाइम्स है. अब ये जो लेफ्ट टॉप है ना, लेफ्ट टॉप, उधर ये शॉर्टकट लिखवा लेता हूँ मैं. ये शॉर्टकट क्या लिखोगे आप? ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ था ना यहाँ तक, तो बराबर ना. मैंने A और B, चलो ना इसको A और B कर देता हूँ, चलो नो प्रॉब्लम. दिस इज A, दिस इज B. So this is AXI plus AYJ plus AZK and this is BXI plus BYJ plus BZK. तो अभी ये जैसा दिया वैसा हो गया कि नहीं? That means AX upon BX should be AY upon BY should be AZ upon BZ. अभी ये जैसा है वैसा हो गया, right? अभी खाली आपको ये पार्ट ऐड करना है, ये पार्ट. सर AZ upon BZ. AZ upon सॉरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया कि चालू था ना रिकॉर्डिंग. हाँ. सो AX upon BX is AY upon BY is AZ upon BZ. ये रेशियो लिखा है ना वहाँ पे. अभी मैं उसमें 4 पॉसिबिलिटीज लिखवा देता हूँ. सो पेज नंबर 8 लेफ्ट टॉप पे ये पॉसिबिलिटी लिखो कि अगर ये रेशियो प्लस आया तो दे आर पैरेलल, माइनस आया तो एंटी पैरेलल, +1 आया +1 कंपल्सरी तो इक्वल, और -1 आया तो नेगेटिव सॉल्यूशन. So are you now on question number 5, please? After copying this, are you now on question number 5? Stop writing, check. Vector 2i minus 3j plus ak. Vector 2i minus 3j plus ak. And vector b, 6i minus bj. 6i minus bj. Plus 3k. Since they are parallel, stop writing. Since they are parallel, can I say therefore 2 upon 6 should match with -3 upon -b should match with a upon 3. माइनस साइन है तो माइनस साइन भी लिखने का. इसका मतलब बेटा ये अननोन है और ये अननोन. ये समझा मैंने क्या लिखा? If they are parallel, इसका मतलब उनका रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए. सो कैन आई से 1 upon 3 is 3 upon b is a upon 3. आपको a ढूंढना है तो ये दोनों को कंपेयर करो, और आपको सॉरी b, और अगर आपको a ढूंढना है तो ये दोनों को कंपेयर करो. दोनों ढूंढना है आपको, दोनों ढूंढना है. सो कैन आई से b will be 9 and a will be 1. Option A. आंसर इज ऑप्शन. समझा बेटा कि बाउंसर गया? समझा? 2 upon 6 should match with -3 upon -b should match with a upon 3. This upon this should be this upon this should be this upon this. Right? इसका मतलब 1 upon 3 because 2 upon 6 is 1 upon 3 is 3 upon b minus minus plus is a upon 3. अब इसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ. 1 upon 3 is 3 upon b and second part is 1 upon 3 is a upon 3. बराबर. इसका मतलब b का आंसर 9 आया और a का आंसर 1 आया बिकॉज ये कट हो. अभी समझा? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ना. पहले a पूछा है कि पहले b पूछा है, बिकॉज कभी कभी तो एकदम खतरनाक ऑप्शन देते हैं. 1,9
9,1. So 1,9 if A is asked first, and 9,1 if B is asked first. You have to be careful. I hope you are comfortable with my speed. एक एक क्वेश्चन जा रहे हैं दिमाग में. असाइनमेंट्स एकदम ध्यान से सुनने का. Remember, असाइनमेंट में the teachers are discussing the main types with you. So if you have understood the main types, then you can do practice papers, external books on your own. Question number 6 was already done. What? Question number 6 was already done. है ना बेटा? Question number 6 was already done. Question number 7 was theoretical. Question number 7 is knowledge based. क्या आंसर आएगा? It needs both, है ना? Both magnitude and direction. So Delhi. Question number 8. एकदम ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके ऊपर से 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं. इसके ऊपर से हम लोग 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं. मार्क इट 5 स्टार ऑन लेफ्ट साइड. FAQ, फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर. इजी है बट फेवरेट. हो चुका है. सॉरी, ये करवा चुका हूँ. वापिस करता हूँ. उसका रीजन है, इसके ऊपर बेस्ड 3 क्वेश्चंस और हैं. They have given me 2 forces 5 and 10. Don't start with me please. Force 1 is 5, force 2 is 10. Right? Therefore resultant force बेटा किसके और किसके बीच में आएगा? Will it be between F1 plus F2 and F1 minus F2 mod? So is my resultant answer between 5 and 10 का sum and 5 and 10 का difference. इसका मतलब मेरा resultant answer should lie between 15 and 5. मतलब मेरा आंसर 5 से कम नहीं हो सकता और 15 से ज्यादा नहीं हो सकता. मतलब मेरा आंसर 4 न्यूटन नहीं हो सकता. मेरा आंसर 4 न्यूटन नहीं हो सकता. दैट मींस माय आंसर इज ऑप्शन विद 4 न्यूटन. आंसर इज ऑप्शन सी. अब एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, because on the basis of this you are going to do 3 similar questions right now in front of me. Are we on question numbers 8 में लिखो बेटा. solve 17, 21 and 26. solve 17, 21 and 26. और ये तीनों क्वेश्चन में जाके लिखो सेम एज इट. आई एम वेटिंग फॉर इट. आई एम वेटिंग फॉर इट. अरे मैग्नीट्यूड है, पढ़ना ध्यान से. मॉड का मतलब क्या? डिफरेंस. इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान रखने का. इधर मैंने सब्ट्रैक्शन लिखा कि डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब क्या? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर. नहीं लिखा था क्या मैंने इधर? इधर आंसर शुड लाई बिटवीन मैक्सिमम है. ये क्या लिखा इधर? मॉड. आज ही सिखाया ना मैंने. क्या बोलूं यार तुम लोगों को. How can my answer be -5? How can a height of a person be negative? 5वां लेक्चर है ना अभी. इतनी बार बोल चुका हूं मैं. उसके बाद में भी मिस्टेक होती है. चलो सॉल्व 17, 21 and 26. बेटा वीडियो पॉज करो. पॉज. चलो बेटा 17th का आंसर क्या है बताओ. वेट लेट मी चेक. आपके पास 4 ऑप्शंस है और उन्होंने बोला कि which pair of following will never give you answer to. Which pair will never give you answer to. तो बेटा 17th क्वेश्चन में फर्स्ट पेयर क्या है? 1 and 3. मतलब मेरा आंसर 4 और 2 के बीच में आना चाहिए और इसमें 2 आया. सेकेंड पेयर 2 and 2. मतलब मेरा रिजल्टेंट आंसर 0 और 4 के बीच में आना चाहिए. सम एंड डिफरेंस. ये भी है, इसमें भी 2 आया. मेरा थर्ड आंसर 1 and 1. तो मेरा रिजल्टेंट आंसर 0 और 2 के बीच में आना चाहिए. इधर भी आया. मेरा फोर्थ ऑप्शन 1 and 4. मतलब मेरा रिजल्टेंट आंसर 1 and 4 मतलब 3 and 5 के बीच में आना चाहिए. तो इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें नहीं आया. मतलब मैं आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. तो 17th का आंसर दिल्ली. 17th का आंसर दिल्ली. 21 का आंसर क्या है? आपके पास 5 और 10 है, मतलब आंसर 5 और 15 के बीच में आना चाहिए. तो 2 नहीं आना चाहिए.
ऑप्शन दिल्ली नहीं आना चाहिए, है ना? नेक्स्ट 26 वेरी गुड, मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बेटा। उन्होंने बोला है कि 4 और 3 का रिजल्टेंट आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन 7 दिया है, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन 7 दिया, कैन आई से 7 आंसर सिर्फ तब आएगा व्हेन द एंगल इज 0, यस और नो? फर्स्ट 1 आंसर कब आएगा व्हेन द एंगल इज 180, 5 आंसर कब आएगा एंगल इज 90। क्वेश्चन में उधर किधर भी उन्होंने एंगल मेंशन किया है? मेरा फर्स्ट आंसर तो ही आता अगर उन्होंने बोला होता कि एंगल इज 0, मतलब पैरेलल वेक्टर। तो इधर आप कमेंट लिख के रखो, अच्छा क्वेश्चन, राइट साइड पे, राइट साइड पे बेटा, राइट साइड पे 26 में राइट साइड पे कमेंट लिखो, अरे वर्किंग स्पेस राइट साइड। आंसर विल बी A only if theta is 0 degree. Answer will be A only if theta is 0 degree. Answer will be B if theta is 180 degree. Answer is B if theta is 180 degree. Answer is C if theta is 90 degree. नहीं मुझे नंबर, अच्छा सेकंड ऑप्शन 5 है क्या? हाँ तो उसमें 90 आना चाहिए बराबर। थर्ड ऑप्शन में 180 करेक्ट। बाद में लिखो लास्ट में, since angle is not mentioned in the question, since angle is not mentioned in the question, since angle is not mentioned in the question, answer is anything between, answer is anything between sum and difference. Answer is anything between sum and difference. Therefore answer is Delhi. Therefore answer is Delhi. समझा बेटा कि वापस बोलूं? राइट? मैंने बोर्ड पे एक ही क्वेश्चन किया था, लेकिन अपना एक साथ में 4 क्वेश्चन हो गया। अंडरस्टूड? चलो कम बैक, कम बैक। We were on 8th question. Now we are on 9th. Now we are on 9th. Ninth. Question 9. Smart question. Nice. Vector A plus vector B is vector A minus vector B. Given. Vector A plus vector B. Stop writing. Is vector A minus vector B. I am shifting the vectors on this side. So vector A plus vector B minus vector A minus plus vector B should be null vector, no? क्योंकि मैंने साइड चेंज किया। वेक्टर A और वेक्टर माइनस A गया। That means twice of vector B is 0 vector. Therefore B vector is 0 vector upon 2. Vector upon scalar is possible. So can I say vector B should be 0 vector? मतलब 4 ऑप्शंस रॉन्ग है। B 0 राइट साइड पे 0 के ऊपर वेक्टर साइन नहीं है, इसलिए वो भी रॉन्ग हुआ। वेक्टर कैन नॉट बी स्केलर। तो लास्ट ऑप्शन में बेटा 0 के ऊपर वेक्टर का साइन डाल दो। लास्ट वेक्टर में 0 के ऊपर वेक्टर का साइन डाल दो। नाउ इट इज करेक्ट। नाउ सोचो, अगर बेटा दिल्ली करेक्ट हुआ तो बॉम्बे भी करेक्ट हुआ फिर तो। लेकिन बॉम्बे क्यों नहीं आंसर हो सकता है? क्योंकि अगर बॉम्बे करेक्ट हुआ तो ए में भी करेक्ट। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर 0 हो सकता है। एनी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज वेक्टर ना, तो वेक्टर इनटू वेक्टर इज वेक्टर, तो स्टेटमेंट बराबर है। लेकिन अगर वेक्टर B 0 हुआ
तो वेक्टर ए मे बी 0, राइट। और अगर ए 0 हुआ तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, लेकिन 3 ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते हैं, एंड देयरफॉर द आंसर इज दिल्ली। ट्रिकी क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, खोपड़ी मार्क करो, मस्त क्वेश्चन था, खोपड़ी मार्क करो। आंसर शुड बी दिल्ली। नाउ यू कैन कॉपी। 9th question, answer is Delhi. Now you can copy. बोलो। Sir, vector sign can only be there on 0. Sorry? Vector sign can only be there on 0, not on 1. हाँ, yes. Only 0 is the only number on which you can put arrow, otherwise no. 9th question समझा बेटा? 10. What is the magnitude of sum of two vectors 3i and 4j? Easy. Everybody here. Vector p is given as 3i. Vector q is given as 4j. So what is vector r? Sum of these two. Is it vector p plus vector q? So what is vector r? 3i plus 4j. लेकिन बेटा ये नहीं पूछा, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। What is the magnitude of the vector? Square root of sum of squares of components. So is it 3 square plus 4 square? Your answer is 5. Your answer is 5. That means 11th का आंसर, 10th का आंसर should be C. 10th का आंसर should be C. 11th अपना हो गया था। 12th. These two vectors are equal. Very easy. Very easy. अगर vectors equal है मतलब उनके x component, y component और z component मैच होने चाहिए। Yes sir. What is vector number 1? I minus 3j plus ak. What is vector number 1? I minus 3j plus ak. And second vector is I minus 3j. अच्छा पहला वाला I minus 3j, अच्छा पहला 5k. Okay, no problem. Vector number 2 is I minus 3j plus ak. हाँ, अभी ध्यान से सुनो बेटा। Since vector a1 is equal to vector a2, therefore their components must be equal. Components must be equal. अच्छा ऐसा क्यों? Because the ratio should be +1. The ratio should be +1. Components are equal. इसका मतलब 1 is matching with 1. -3 is matching with -3. So A should match with 5. And therefore your answer of A should be 5. Value 5. That means your answer should be option A. समझा बेटा? I hope I'm not fast. चलो 12th question का answer is 5. 12th question का answer is 5. 13th हो गया अपना? 13th हो गया? चलो बेटा 14th में कौन सा वाला गलत है? याद करवाता हूँ, याद। स्केलर प्लस माइनस स्केलर इज ऑलवेज अ स्केलर। वेक्टर प्लस माइनस वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। बट स्केलर प्लस माइनस वेक्टर इज नॉट पॉसिबल ओनली। नॉट पॉसिबल। देयरफॉर आंसर शुड बी सी। चेक करो, बिकॉज सी में स्केलर में वेक्टर ऐड किया। आंसर इज सी। समझा कि वापिस बोलूं? Scalar plus scalar is always a scalar. Scalar minus scalar is always a scalar. Vector plus vector is always a vector. Vector minus vector is always a vector. Scalar plus vector is not possible. Vector plus scalar is not possible. Answer is C. Question number 15 हो गया था. 15th was done. Right? 16. The resultant of two vectors, can it be 0? 16. Beta, can the answer of two vectors be 0? Yes. Vector A plus vector minus A का आंसर 0 आता है कि नहीं? So what is this? Sum of two equal and opposite vectors is always 0 vector. समझा? The answer can be 0. So answer should be C. Correct. Answer should be C. Question number 17. Was it done? बोल। सर 16 वाला मुझे नहीं समझा। ये वेक्टर है, इसमें इसका नेगेटिव ऐड कर तो आंसर 0 आया। क्या पूछा? कैन द सम ऑफ टू वेक्टर्स बी 0? आंसर इज
Option C. Question 18. Fabulous. Fabulous. खोपड़ी मार्क करो बेटा. 17th was done ना? 17th was done. 18th. Do not start with me. Must question. Must. Start खोपड़ी. Important also, tough also. ध्यान से सुनो. There are two statements made regarding three vectors, and they are non-zero vectors. ध्यान से सुनो. Don't start with me. Vector A is a non-zero vector. Vector B also is a non-zero vector. Vector C also is a non-zero vector. First statement समझा? अब उन्होंने क्या बोला है कि they are of different magnitudes also. मतलब ये तीनों का साइज भी सेम नहीं है. मतलब size of A is not equal to size of B, is not equal to size of C. अभी मैं थोड़ा रफ जजमेंट लेता हूँ कि मेरा A, B और C का साइज क्या हो सकता है. सो से मैं A और B और C का साइज लेता हूँ. A का साइज ले रहा हूँ बेटा मैं 2, B का साइज ले रहा हूँ मैं 3 और C का साइज ले रहा हूँ मैं 5. बराबर. तो जब ये दोनों वेक्टर में से किसी को मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 0 आ सकता है. लेकिन अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 0 आ सकता है क्या? आंसर इज यस. ध्यान से सुनो बेटा. ये वेक्टर 2 है, ये वेक्टर 3 है और ये वेक्टर 5 है. ऐड करो तीनों को. आया आंसर 0. लेकिन इसमें उन्होंने बोला कि इट मे बी 0. अगर बेटा इसको मैंने 6 लिया, सपोज, राइट, सपोज मैंने वेक्टर को C को 6 लिया, तो बेटा ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 6, राइट. तो यहां पे टोटल 0 है, लेकिन यहां पे टोटल 0 नहीं है. इसलिए मे बी 0, मे नॉट बी 0. इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर श्योर फॉल्स. चेक करो. आपको 3 नॉन जीरो वेक्टर्स लेने, मतलब तीनों का साइज सेम नहीं होना चाहिए. तो जब तीनों का साइज सेम नहीं है मतलब वो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स हुआ ही नहीं. बराबर ना. अगर मुझे इसमें अलाउड होता कि 2 का साइज सेम ले सकता हूं तो मैं इसको 3, 3, 5 लेता, तो 3 और -3 का आंसर 0 आ सकता है. यस और नो. तो स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली फॉल्स. स्टेटमेंट 2 मे बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू नहीं बोला है उन्होंने. यू हैव टू बी केयरफुल. थियोरेटिकल क्वेश्चन में बेटा बहुत ध्यान रखने का. आई रिपीट, फर्स्ट स्टेटमेंट पक्का फॉल्स है. आप रीड करो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है. सम ऑफ 2 वेक्टर्स में बी 0, डेफिनेटली नो. अच्छा, सम ऑफ 3 वेक्टर्स में बी 0, मे बी यस, मे बी यस, मे नॉट बी यस. लेकिन मे बी यस करेक्ट है ना. तो आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन सी. योर आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन. एक मिनट बेटा, बिफोर यू कॉपी, हैव यू अंडरस्टूड दिस? स्टार्ट. एग्जाम्पल के साथ लिखना तो एग्जाम के टाइम पे इजी पड़ेगा. जो हम लोग का एक पेपर था ना, अपन में कोई डाउट था, क्वेश्चन जो मैं रॉन्ग. लेक्चर के बाद. हाँ, बाद में. चालू लेक्चर में मत पूछ. लेक्चर के बाद में पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा. जिसको भी डाउट है लेक्चर के एंड में पूछो मुझे. जो अभी करेक्टेड पेपर मिला ना, उसमें अगर कुछ डाउट है वी कैन डिस्कस, नो प्रॉब्लम. So the first statement is definitely false. The second statement may be true. हो गया बेटा. 18th was tricky. Are you with me? 19th easy. The maximum value of magnitudes of 2 vectors P and Q is 24 and the minimum value is 4. What does this mean, students? What is the meaning of maximum? What is the meaning of maximum? And what is the meaning of minimum? Subtract. So stop writing please. Question number 19 का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of question number 19?
P plus Q upon P minus Q. Should it not be 24 upon 4? Yes or no? क्या कि काम करते हैं ना, we can solve them simultaneously, which will be more easy. What is the meaning of first sentence? P plus Q is 24. Do you agree with me? Yes. What is the meaning of second sentence? P minus Q is 4. Right? So can I solve them simultaneously? That means 2P is 28. So P is 14. If P is 14, that means Q is 10. Correct? P upon Q पूछा है कि Q upon P पूछा है? P upon Q. Is it 14 upon 10? Is it 7 upon 5? Is it 7 upon 5? Wait please. Have you understood this? We can save little time. आप लोग 19th question में लिखो. Solve 27. अभी मैं 27 साथ में सॉल्व करता हूँ. 27 साथ में सॉल्व करता हूँ. Check 27. In 27th question they are saying maximum and minimum magnitudes of resultant of two vectors P and Q are in the ratio 3:1. सोचो बेटा ये P upon Q is 3:1 है कि P plus Q upon P minus Q 3:1 है. कौन सा सही है? ये लिख के कैंसिल करने का, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को गलती होता है. It is not P upon Q which is 3:1. No, it is P plus Q upon P minus Q which is 3:1. Right? Cross multiply. What will you get? Cross multiply. So 1 times P plus Q is 3 times P minus Q. Open the bracket. P plus Q is 3P minus 3Q. Right? So 2P should be equal to 4Q. So P should be equal to 2Q. P should be equal to 2Q. That means your answer should be A. 27th का आंसर A आया. बेटा 19th का क्या आया? B. Delhi. 19th में लिखो solve 27 और दोनों कॉपी करो. I am waiting for you. Question number 20. Question number 20 done. Question number 21 done. Question number 22 easy. Question number 20 done. 21 done. 22nd I don't know, asking. Is it done? Not done? Okay, we can do it easy. आपके पास दो वेक्टर्स है 6i plus 7j and 3i plus 4j. Right? 6i plus 7j and 3i plus 4j. You have to find out the resultant and then you have to find out the magnitude of this. Easy. पहला वेक्टर बोलो प्लीज 7j. ओके, दूसरा वेक्टर बोलो प्लीज 3i plus 4j. बराबर? Okay. So can I say resultant of this will be 9i plus 11j. उन्होंने रिजल्टेंट नहीं पूछा, उसका साइज पूछा है. So can I say resultant का size will be root of 9 square plus 11 square. So is it root of 121 plus 81? 202. Right? और उन्होंने ऑप्शन वैसे ही दिया है. Okay, ऑप्शन ऐसे ही दिया है. Otherwise this would be 14 point something. सोचो root of 196 is 14. So root of 225 is 15. That was the reason I was insisting upon. You must remember square roots from 1 to 30. I'm so sorry. Squares from 1 to 30 and square roots from 1 to 900. Okay? Perfect powers. So 22 का आंसर क्या आया? C. 23. Done? Okay. 23rd done. 24th. बहुत अच्छा क्वेश्चन. Super duper favorite of the examiners. Please do not start with it. 23rd star खोपड़ी. Important भी है, tough भी है. 24th, okay. Important भी है, tough भी है. Do not start with me, please. If a unit vector is represented by, वो जो 30 है ना, वो राइट साइड का नंबर है, वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं, वो दिस क्वेश्चन नंबर 30. If the unit vector is represented by 0.4i plus 0.7j plus ck, मतलब ये जो वेक्टर दिया वो यूनिट वेक्टर है, right? What is vector A?
0.7i plus 0.4j plus ck. Am I right? 4i, no problem. 0.7j, no problem. Right? Plus ck. उन्होंने बोला है कि ये यूनिट वेक्टर है. उन्होंने बोला है कि दिस वेक्टर इज यूनिट वेक्टर. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका साइज 1 है. किसका? पूरे वेक्टर का साइज 1 है. उन्होंने c पूछा है. अब ध्यान से सुनो कैसे लिखने का. ध्यान से सुनो बेटा. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंपोनेंट्स. So is it 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर? लेकिन ये यूनिट वेक्टर भी तो है ना, मतलब इसका साइज 1 हुआ. मतलब इसका साइज 1 हुआ. Is it root of 0.16 प्लस 0.49 प्लस c स्क्वायर? इसका मतलब 1 is equal to अंडर रूट 0.65 plus c square. Squaring both sides, what will you get? 1 is equal to 0.65 plus c square. That means c square is 0.35 and therefore c is under root 0.35. Mast question now, mast. Have you understood this? Yes. Super sure? Yes. Repetition required बेटा? No, sir. वापिस बोलो एक बार. समझा? ये वेक्टर दिया है उन्होंने बोला ये यूनिट वेक्टर भी है. तो पहले मैं इसका साइज ढूंढ रहा हूँ. व्हाट इज द साइज ऑफ एनी वेक्टर? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंपोनेंट. बट दिस वाज यूनिट वेक्टर आल्सो, सो साइज इज 1. आंसर शुड बी ऑप्शन सी. ये बेटा मैं जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, घर पे जाके एक बार खुद से वापस करो और उसके बाद में आपको होमवर्क शुरू करना. यू विल फील कॉन्फिडेंट. पहले ये सब क्वेश्चंस घर पे जाके खुद से वापस करने का. Right? So because right now you are copying them. After 2-3 hours, 4 hours, check how much you remember. और आज का आज जाके करवा. Don't keep it pending, please. जो होमवर्क 1 घंटे में होता है ना, उसको फिर 2 घंटे लगते हैं. If you give some time. No. हो गया बेटा कॉपी. Another beautiful question coming up, very beautiful. Again, super favorite of the examiners. So question number 25 also, you will mark it star copy. Important also, little tricky also. शुरू करो. 25. Please do not start with me. Please do not start. Try to understand the language. A vector P, when added to sum of two vectors 2i minus 3j plus k and minus 3i minus j plus k, gives a unit vector along x-axis. Underline, gives a unit vector along x-axis. How to write this? ध्यान से सुनो बेटा. Vector P is added to vector number 1 and vector number 2 to give you unit vector along x-axis. Now what is unit vector along x-axis? 1i plus 0j plus 0k. मैं चाहता तो खाली 1i लिख सकता था, right? But it is always better to write in XYZ format. So what is unit vector along x-axis? 1i plus 0j plus 0k. वेक्टर p को किसमें ऐड किया है? पहला वेक्टर है 2i minus 3j plus k. 2i minus 3j plus k. और दूसरा वेक्टर कौन सा है? minus 3i minus j plus k. Okay, stop writing. I'll give you enough time.
तो बेटा पहले ये दोनों वेक्टर का टोटल लो, देखो कितना कैन आई से therefore वेक्टर p प्लस व्हाट इज दिस टोटल 2i minus 3i which is minus I minus 3j minus j minus 4j k plus k 2K. plus 2k yes or no this is equal to 1i plus 0j plus 0k बराबर। तो ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। अब ये वेक्टर का साइड चेंज करो बिकॉज़ आपको तो वेक्टर p ढूंढना है yes or no so when you change the side what will you get Minus therefore 2i vector p is equal to minus 2i 1i plus 0j plus 0k minus minus I minus 4j plus 2k I minus minus I 2i 2i 0j minus minus 4j plus 4j 0k minus minus plus minus 2k minus 2k yes or no समझा। तो ये अपना वेक्टर p, अगर वेक्टर p पूछा होता तो, लेकिन इसका साइज पूछा है तो व्हाट इज साइज ऑफ दिस वेक्टर p अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज इट रूट ऑफ 24। yes option 6 अच्छा रुको अगर मैं ये बोलता कि मुझे ये वेक्टर को ऐड करने के बाद यूनिट वेक्टर अराउंड माइनस वाई एक्सिस मिलता है माइनस वाई minus जिसको मैं लिखूंगा 0i माइनस जे प्लस 0। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे यूनिट वेक्टर अराउंड z एक्सिस मिलता है plus 0i प्लस 0j प्लस समझा। ये सब जो अभी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये सब प्रैक्टिस पेपर्स में आएंगे। तो when I am explaining something you should understand it very nicely because you are using the same knowledge to solve extra questions. Question number 25 का आंसर क्या है बेटा? Sorry. अच्छा, वाह. Start Khopri, a very good question. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा अपना, है ना? 26 हो गया, 27 हो गया, 28 बहुत इजी है, लॉजिकल है। बताओ क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। A vector cannot be changed, but it can be shifted. Yes or no? A vector cannot be changed, but it can be shifted. So answer is A. Last two questions of the day. Last two questions of the day. एकदम ध्यान से सुनो. Please do not start with me. Vector A is of magnitude 5 and is due east. I want you to highlight two things. Of magnitude 5 and due east. What do you mean by east? इधर देखो. Very good, very good. It is positive x direction. ये बेटा आपके directions हैं. This is north, this is south, this is east, this is west. What is the meaning of east? Positive x direction. बराबर? What is the meaning of north? Positive y. What is the meaning of west? And what is the meaning of south? बराबर? अभी वेक्टर A देखो कैसे लिखने का. It is size 5. Right? This is size. And the direction is what? North. No, east. इसका मतलब बेटा वेक्टर A कैसे लिखने का? 5 times I. सोचो. वेक्टर A is what? 5 times I. आपको दूसरा वेक्टर ढूंढना है which is -5a. Which is -5a. Now if A is 5i, then what is 5a? 25. Should it be 25i? Therefore what is -5i? Is it -25i? इसका मतलब is it 25 times -i? तो 25 क्या हो गया? उसका साइज हो गया. 25 क्या हो गया? उसका साइज हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया. और बेटा -i का मतलब due west ड्यू वेस्ट. परफेक्ट. इसका मतलब योर आंसर इज ऑफ मैग्नीट्यूड 25 ड्यू वेस्ट. सॉल्व कैसे करने का समझा? 29 क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 25 ड्यू वेस्ट. दिल्ली, बॉम्बे. समझा? 29 का आंसर बॉम्बे. एक मिनट बिफोर यू कॉपी, मैं एक नया क्वेश्चन बना के पूछता हूँ. देयर इज अ वेक्टर ऑफ साइज 7 ड्यू नॉर्थ. There is a vector of size 7 due north. Then what is -4a?
एक वेक्टर है 7 ड्यू नॉर्थ, मतलब बेटा वो 7j हुआ। मैं आपको -4 टाइम्स ये वेक्टर पूछता हूँ, 28 ड्यू साउथ। परफेक्ट परफेक्ट, समझा? स्टार खोपड़ी, डायरेक्शंस मालूम होना चाहिए। 29 स्टार खोपड़ी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड ऑफ द असाइनमेंट। उसके बाद में ये पूरा है ना, टाइटल के बाजू में मैंने होमवर्क लिखा है। आई विल रीड दैट होमवर्क फॉर यू। कंपल्सरीली यू हैव टू सॉल्व एंड कम। देयर आर 62 MCQs, राइट? Tuesday I'll be discussing the doubts of all this. So Tuesday first I'll be discussing all the doubts of this, and at the end of the lecture, last 10 minutes I'll take the DC. But first I'll solve the doubts. Okay? अभी सबसे मेन ये है बेटा कि सर ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करता। सर ने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया, I will solve 60. That means your work, your efforts must be double than mine, triple than mine. Because there you are going to use your brain. No sir around. तो कितना मैक्सिमम राइट आता है, दैट विल डिसाइड कि हाउ सिंसियर यू आर। आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, देयर इज अ बॉय हु इज वॉकिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर पाथ ऑन द साइड्स, एंड दैट रेक्टेंगुलर पाथ इज 400 मीटर बाय 300 मीटर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसका लेंथ 400 मीटर हुआ और इसका ब्रेड्थ 300 मीटर हुआ, समझा? नाउ दैट बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम वन कॉर्नर एंड गोस टू डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर। मतलब अगर बॉय ने यहां से स्टार्ट किया है तो बेटा वो यहाँ पे फिनिश करेगा। सोचो, कोई भी एक कॉर्नर से शुरू करेगा, ऑपोजिट कॉर्नर पे फिनिश करेगा, डायगोनली ऑपोजिट। तो ये डायगोनली ऑपोजिट हुआ, बराबर? तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय? वेरी गुड। बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय? इज इट रूट ऑफ 400 प्लस 300, राइट? सो इज इट 500? अब ध्यान से देखो, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन आर कॉन्ट्राडिक्टरी। सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन आर कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब वो दो में से कोई भी एक रॉन्ग है। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट 700 रॉन्ग है, और आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ही ढूंढना था। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। लास्ट वर्ड अंडरलाइन करो, इनकरेक्ट। मतलब आपका आंसर आ गया बॉम्बे, बट नाउ यू टू चेक ऑप्शन दिल्ली कि व्हाई ऑप्शन दिल्ली इज करेक्ट। डांस इज वेरी गुड, ब्रिलियंट। उन्होंने क्या बोला है कि द बॉय इज वॉकिंग यूनिफॉर्मली। फर्स्ट वर्ड पढ़ो, फर्स्ट लाइन का वर्ड पढ़ो, द बॉय इज वॉकिंग यूनिफॉर्मली। मतलब बेटा उसका स्पीड यूनिफॉर्म हुआ, लेकिन उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज बॉय जब एक कॉर्नर पे आएगा उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, है ना? ये बॉय यहां तक आया, बाद में ऐसे गया ना, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज्ड, एंड इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग मतलब वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट वेक्टर? अ कांस्टेंट वेक्टर इज द वन whose magnitude and direction both remain same। अब ये बॉय यूनिफॉर्म स्पीड से तो जा रहा है, लेकिन इधर आके 90 डिग्री पे घुमा ना वो, तो उसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं हुआ। मतलब फर्स्ट सेंटेंस में स्पीड यूनिफॉर्म, लेकिन लास्ट ऑप्शन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो आप लोग लास्ट ऑप्शन के लिए कमेंट लिखो, वाई ऑप्शन दिल्ली इज करेक्ट। लास्ट ऑप्शन करेक्ट क्यों है? द बॉय इज गोइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड but not with uniform velocity. The boy is going with uniform speed but not with uniform velocity because after walking for 400 meters, the direction will change. After walking for 400 meters, the direction will change. समझा बेटा? इसलिए लास्ट ऑप्शन करेक्ट था, बराबर? अच्छा, अभी होमवर्क सुनो ध्यान से। आपके सारे असाइनमेंट्स जहाँ पे खत्म हो रहे हैं वहाँ पे प्रैक्टिस पेपर शुरू हो रहे हैं, तो आपको ये होमवर्क भी वर्किंग स्पेस में ही करना है। प्रैक्टिस पेपर 1 में यू टू सॉल्व एवरीथिंग एक्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज अभी तक प्रोजेक्शन क्या होता है वो मैंने सिखाया नहीं। प्रैक्टिस पेपर 1 में आफ्टर ऑल योर असाइनमेंट्स आर ओवर यू विल सी प्रैक्टिस पेपर, चेक करो। आई विल टेल यू द पेज नंबर 76।
वो पेज नंबर शायद थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। सारे असाइनमेंट्स खत्म होने के बाद सॉल्यूशंस और उसके बाद में प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर 1 एक्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व एवरीथिंग, प्रैक्टिस पेपर 2 पूरा सॉल्व करने का, प्रैक्टिस पेपर 3 पूरा सॉल्व करने का, एंड असाइनमेंट 2 में से ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करने का, 1 3 4 5 7 8 9 11 असाइनमेंट 2 में से। That means totally 62 MCQs are homework for you. Practice paper 3 तक सब करने। So next lecture is going to be super exhaustive because we will be discussing the doubts. पहले मैं डाउट डिस्कस करूँगा, बाद में DCP. Please stop recording.